किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले आपने टेस्ट कर लिया खुद को. एट दैट टाइम आई आइडेंटिफाइड द 7 sins दैट बाइबल टॉक्स अबाउट. में जेई क्रैक करना है, सीए बनना है, कैट क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है. ओके, अगर इम्पैक्टफुल कुछ करना है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो ये करना चाहिए. 11th में जाके रियलाइज हुआ कि ये तो है ही नहीं जो हम पढ़ना चाह रहे थे. There is certain aspiration that you have as a human, that oh, I want to be this, I want to do that. Bringing those vidyas and those knowledges back together with new age learning, and that is holistic learning or holistic education. Hello and welcome to Convo with Ayush, where we bring amazing expert guests and have very interesting convos with them about mindset, lifestyle, balance, health and fitness, wellness, education and so much more. आज की हमारी जो गेस्ट है उनसे मैं कुछ ज्यादा ही रिलेट करती हूँ बिकॉज हम दोनों को ही पुश किया गया था टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड गिव मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. सो अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं देन दिस इज द परफेक्ट एपिसोड फॉर यू बिकॉज शी टॉक्स अबाउट होलिस्टिक लर्निंग. क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बता देते हैं. कैसे पढ़ना है, that's what she's here for. Our today's guest is the founder of two ventures, Mara Weddings and Rah Sang Saloni. And she's doing some amazing work teaching students out there the importance of holistic learning and a balanced life and lifestyle. Exact alignment with what I'm trying to do here on this podcast. इसके अलावा हमने काफी डीप टॉपिक्स पे भी बात की है, जैसे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन को कैसे हम कंबाइन और यूज कर सकते हैं टू मैनेज अ स्ट्रेस लेवल्स, स्पेशली फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, मे इट बी कॉम्पिटिटिव और अदरवाइज. और अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, तो उसके लिए भी सलोनी ने बहुत ही इजी और अप्रोचेबल मेथोडोलॉजी बताई है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंट्रिग्ड बाय दिस, डू वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड. आर वी रेडी फॉर एपिसोड 2 देन? So चलिए करते हैं एक very interesting convo with Saloni Khandelwal. Hi Saloni, welcome to Convo with Ayush. How are you feeling today? Hi Ayushi, I am great. Actually, I'm really excited to speaking with you. I'm pretty sure this is going to be one of the most interesting conversations I've had in a while because we have that vibe. And it's just, I'm very curious to know a lot of things about a lot of things from you. So it's going to be amazing. Let's dive into the convo. But Yes. I would like to say that you are an entrepreneur, a coach, but your significant quality that I recognized when I met you the first time was your calming demeanor and aura. It's like whoever comes in your proximity, it's like a calming surface. That's what I felt when I met you the first time. So where does Okay. it come from? Like, what is the source of it? Actually, it's really kind and sweet of you to say that and notice that. I believe, I don't know where the calming aura comes from, because obviously people around me would perceive it higher than I would. But I think something has to do with the way I conduct my life. So, one thing that I really started doing from a very early age, probably when I realized that, oh, when you start learning about things, good and bad, uh, nice things and evil things to do, and the moral values. So at that time, I identified the 7 sins that Bible talks about, the 5 ripu that Hindu Vedas talk about. So, anger, greed, lust, wrath, all of that. In Hindi, it is called Kam, Krodh, Lobh, Ahankar, Moh. Involuntarily, I just try to do this, that whenever I'm feeling anger, I try to calm myself down. Whenever I'm feeling greed, or whenever I'm feeling lust, or whenever I'm feeling something that is supposedly evil, I just try to deal with it. So, I like talk to myself and like, no, this is not cool. Not Saloni, not good. You're not doing this. So maybe the resultant of that has turned out in my aura. And then when I meet people, they feel that calming effect. I think that could be one possible reason. I'm still to find out more. Amazing, amazing. Yeah. That's a practice I'm definitely gonna follow. I do self-talk and all of that, but this is a very creative thing that just catch your emotions where you're wrong and correct it right away. So yes, Yes. that can make a huge Yes. difference. Yes. And I think I would like to add in this. So how do you really notice if something's not right?
is, you start feeling palpitations in your heart. You start feeling something in your tummy. Your forehead, suddenly you have a lot of wrinkles on your forehead. Suddenly you notice that you're thinking and thinking and overthinking. So these are the, reactions that your body gives you, that, oh, something's not okay around me, or I am feeling something wrong. And that's when you quickly snap and like, okay, pause, what is happening wrong? And then you look into it and you're like, okay, no, I don't want to do this. I am not this person. And then you change yourself and, look towards the shift that you can bring. So Yes. that's what I do. Yeah, I actually have a corresponding question to this. I didn't mean to dive into this straight away, but it just popped in my head, so I was going to ask. So, Yes. my ruling number is one, and my ruling planet is Sun. So, this happens with me a lot. That when I'm up, when I'm in high energy, it's all rise and shine and perfect, happy smiles and all of that. But when Yeah. I'm down, I go deep. It's like a deep pit, and I just do overthinking, and the emotions will repeat, and I will Hmm. go into a deep place. And I know that I'm going down. I need to pull myself up, but it can't. It just like flows, like Yeah. it's happening. I know that I need to correct this, but it still takes me quite a bit of time to come out of it. So this is Right. a habitual pattern that I've noticed, like you said. So yeah, this can help me with that as well. Yes. And in fact, you should be proud of yourself that you've noticed a pattern within you. A lot of people don't do it, which is why they're always, succumbed in the rut that they are. So first step actually is pattern recognition and noticing that, okay, what is it that I do in loops? So that first step is taken care of. And I think the journey ahead will be smoother because you know what needs to be fixed. Yes. Yeah. So now coming to your niche that Yeah. many people are very interested about, and I was so intrigued when I talked to you about this because no one ever approaches things the way you do. So you call it holistic learning or holistic education. So Yes. please just introduce us to this amazing concept. What is it? The words sound a little heavy, holistic. So it sounds like, oh my God, this is something which is out of this world and something really unique. To be really honest, it's nothing at all. It's very simple. It's just understanding that you're a human. And when you're a human, being in this body, you have to deal with the body, you have to deal with the mind, you have to deal with your emotions. There is certain aspiration that you have as a human, that, oh, I want to be this, I want to do that. You have to deal with those aspirations. And you have to deal with the spiritual or the religious angle that is attached to you, which comes from within. So, your faith or your belief system, all of that is being part of a human. Now, when you study, often what happens is, as a student, we only focus on the aspirational part, that, oh, ये एग्जाम क्लियर करना है, जेई में जेई क्रैक करना है, सीए बनना है, कैट क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है. तो हम सिर्फ एस्पिरेशन को देख रहे होते हैं. पर करेगा कौन? इंसान ही तो करेगा ना. वो स्टूडेंट जो है वो है तो इंसान ही. और अगर इंसान है तो उसके लाइफ में फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसके लाइफ में इमोशनल टर्मोइल्स भी आएंगे, मेंटली भी सफर कर सकता है, स्पिरिचुअली अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, कनेक्टेड नहीं हुआ, तो भी डिप आएगा. तो वो एस्पिरेशन जो वो चाहता है वो तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे लीकेज है. सो होलिस्टिक लर्निंग और होलिस्टिक एजुकेशन इज फिक्सिंग ऑल दोज लीकेजेस, bringing everything together in one umbrella and then moving towards success. तो इतनी सी बात है. समथिंग दैट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, समथिंग दैट्स आवर कोर, वो करंट एजुकेशन सिस्टम में पीछे छूट गया. क्योंकि करंट एजुकेशन सिस्टम में वो एक स्टेपल तरीका हो गया कि हाँ, क्लासरूम जाना है और हर बच्चा एक फिक्स तरीके से पढ़ेगा. पर दैट्स नॉट ट्रू. हर बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग है, कंडीशनिंग अलग है, हर बच्चे की पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग है, हर बच्चे की हॉबीज, पैशंस, क्यूरियोसिटीज अलग अलग है. तो वो एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क में नहीं फिट हो सकता था. नेवर माइंड, जो हुआ हुआ. But this new thing is not actually a new thing. It's actually the Gurukul Vidya that we have always been followed. Back when schools, the English education system did not start, the British education system. So it's just that, bringing those Vidyas and those knowledges back together with new age learning. And that is holistic learning or holistic education today. Yeah. Beautifully explained. Thank Beautiful. you. It's like really amazing. And the thing you said that it's aspirational learning, what has become. And I do relate because I've taught in multiple institutions and schools. So I've noticed this in kids that the way they are being conditioned, उनके aspirations भी वैसे होते जा रहे हैं. And over a time क्या हो जाता है, they don't realize what they really want.
वो जो उनके एक्चुअल पाथ है उससे टोटल भटक चुके होते हैं, एंड अंटिल दे रियलाइज इट्स ऑलरेडी टू लेट समटाइम्स। agreed, agreed. ये बहुत ज्यादा होता है कि एक तो एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और साथ में कंडीशनिंग, कि अगर किसी का कोई पैशन है या कोई चीज में वो अच्छा है, बट दे आर कंडीशन इन कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उन्हें बहुत Yeah. टाइम लग जाता है फिगर आउट करने में कि दिस इज नॉट आई व्हाट आई मेंट टू डू, एक्चुअली आई वांटेड टू डू दिस। और वो फिर पूरा एक रीलर्निंग प्रोसेस होता है जिसके हाँ, वजह से उनको बहुत सारे टर्मोइल से गुजरना पड़ता है, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ दे yes. वर जस्ट कंडीशन्ड द राइट वे। Yes, actually, I have a personal story with this. Why I'm doing what I'm doing is actually majorly because this entire thing that you narrated has happened with me. So when I was a child, maybe I would be like 10 years of age or something. I always had this feeling that I want to do something for the society. I want to do something for the world. कुछ तो ऐसे impactful करना है, ठीक है? And then my Tauji at that time, he was an IAS officer. So I was intrigued by him that, oh my God, because I saw the kind of impact that he's bringing. So I thought कि okay, अगर impactful कुछ करना है लोगों के लिए, society के लिए, तो ये करना चाहिए. I asked my dad and he told me that, okay, this is what an IAS officer does. He understood that what I want to do, but he did not realize that, oh, जो मुझे करना है जरूरी नहीं है वो IAS officer बन के ही किया जा सकता है. There are more ways to it. So he put that thing in my head that, okay, then you should aim at, studying for UPSC and all. तो अब 10 साल की बच्ची, हाँ 10 साल की बच्ची, she was, to the level कि हम स्कूल जाते थे और रास्ते में एक मंदिर आता था, एंड आई वुड प्रे एट दैट मंदिर फॉर एवरीबडी, एंड देन फॉर माई सेल्फ आई वुड से मुझे IAS ऑफिसर बना देना. At 10 years of age. At 10 years of age. And I did that for like 3 years, 4 years continuously because I was going to school every day. मंदिर आता ही है, एंड मम्मी का ध्यान रखना, पापा का ध्यान रखना, blah blah blah, मुझे IAS ऑफिसर बना देना. This is what I used to pray. Then cut to in my 9th standard, I met another person from my family. He came to our house and he said, oh, you want to prepare for UPSC? You should choose the route of engineering क्योंकि engineers better clear कर पाते हैं. I was like, okay, engineering करेंगे. अब then the shift came to, ठीक है, IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए engineering is a good रास्ता, तो engineering करते. 10th के बाद I was sent to Kota कि ठीक है JEE के लिए prepare करो. Now this person, I was good at PCM, okay, I was always a performing student, academically strong, but engineering का PCM और जो 10th तक हम PCM पढ़ते हैं उसमें बहुत अंतर है. So much for saying that. Yeah. I cannot relate more to this. Like Yes. the ideal thing that has Yeah. happened to me. Like, करना कुछ और था इस बच्ची को, एंड वो totally. पहुंच गई इंजीनियरिंग करने, एंड देयर the shift of entire confidence and that the motive that I had, it was all gone because अब इंजीनियरिंग क्लियर करनी है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पहले से तो किसी और चीज में मजा आता है, वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ. So this entire journey made me realize that no, it's not that I am a weak person or a non-performer or I failed in life. It is that the route that was chosen for me, because I was not an informed person, so it couldn't have been my decision, but this people, society, conditioning, and school system around me, the route that they chose for me was not maybe exactly the right route, which is why doing this from today now, so that like you feel for this problem, I feel for this problem so strongly, so we can actually help our students today itself in identifying that what is their why are they doing so. Even if I chose to go for engineering or I chose to be an IAS officer, the main why was that I want to do something for the world. अगर वो something for the world strong रहता तो क्लियर होता कि ठीक है बेटा, फिर आपको जरूरी नहीं है ये करना है, लेट्स फिगर आउट और कैसे कर सकते हो. Yes. And we So would have achieved that way faster. yeah. The reason I'm saying we is because I'm feeling like you're speaking my thoughts right out loud. This is exactly what I feel because 10th tak it was the same thing. I was very good at math, very good at science, like all subjects. I was a very good student. And in fact, my co-students used to come to my house and learn from me like maths में ये doubt है clear कर दो वो doubt है. So मुझे एकदम hype करके एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाते Same, हैं. same. And just I actually was considering to go for commerce, and which have been a good choice because it would have helped me with marketing and business, the things that I'm learning now. Yeah. But it was like कि नहीं उसमें scope नहीं है, तुम्हारा maths इतना अच्छा है, it will go to waste, and I jumped to PCM. और same thing that you said, 11th में जाके realize हुआ कि ये तो वो है ही नहीं जो हम पढ़ना चाह रहे थे.
Yes. It's completely something else which is not even applicable to real life as much as it should be. Hmm. So I think again, every student is facing this, and even students at in today's age. मतलब we are talking about still 5 years, 6 years, 10 years down the line, जो हमने face किया. Students are just following the herd mentality. So there is something that we need to do about it. yes, totally. And Yeah. not just with the educational streams, even with the other things like may it be fitness or any other things, painting, dancing, whatever the forms are that, ऐसा भी होता है कि क्योंकि उनके फैमिलीज में ऐसा है कि दे आर प्रिविलेंट इनटू लाइक मे बी सिंगिंग और डांसिंग, Hmm. सो दे प्रमोट द चाइल्ड टू डू द सेम, जबकि हो Yeah. सकता है कि उसकी कॉलिंग कुछ और ही हो, बट Yes. दे अगेन गेट इनटू द ट्रैप. एंड सो इट्स नॉट जस्ट कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ये, but it's just diversion. I Ki agree. instead of recognizing ki what the child needs to do to be good at living and enjoy his or her life while doing what he's doing professionally, उसके Hmm. लिए हमें पहले ये recognize करना बहुत जरूरी है कि उसकी actual values, real values या qualities क्या है, that Hmm. he really like calls to it, जो हमें Yeah. अब जाके इतने सालों बाद अब realize होना start हुआ है. So अगर Yeah. हम स्टार्टिंग से ये बेस बना के चले तो पता नहीं कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Hmm. एंड पता है, ऑल्सो आई रियलाइज्ड विद टाइम, पहले मुझे लगता था सोसाइटी की गलती है. फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं, सोसाइटी की भी गलती नहीं है. फिर आई वाज लाइक कि एजुकेशन सिस्टम की गलती है. फिर रियलाइज कि नहीं यार, कोर एजुकेशन सिस्टम की भी गलती नहीं है. ये कलेक्टिव बात है कि इग्नोरेंस है. पता ही नहीं है कि करना क्या है, करना कैसे है. तो ऐसा नहीं है कि मोटिव नहीं है. मोटिव तो है, पेरेंट्स के मन में भी है, टीचर्स के मन में भी है, बट दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड टू नो कि करना कैसे है. तो अगर हम बोले कि अर्ली एज में ही बच्चे को क्या पसंद है, ये आइडेंटिफाई करना शुरू करो, एंड उनके स्किल सेट समझो, पैशंस, क्यूरियोसिटी समझो. बोलने में अच्छा लगता है, पर कैसे करना है ये भी तो सिखाना होगा ना पूरी तरह. लेट्स से 3 तरीके की लर्निंग टेक्निक्स होती है, सो विजुअल, कैनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी. अब ये सबको पता ही नहीं है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट विजुअली बेटर लर्न करता है, या सुनकर बेटर लर्न करता है, या फिर लिख कर या फिजिकल मूवमेंट करके बेटर लर्न करता है. पहले तो खुद को एज अ टीचर, एज अ गार्डियन, एज अ स्टूडेंट नॉलेज होना होगा, तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे. तो ये गैप है जो फिल करनी जरूरत है, जहां पर हम इंसान के बारे में एज ए स्टूडेंट और ज्ञान दे. सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स को तो चलो दे ही रहे हैं, बट फिर भी टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो अपने बच्चे के स्किल सेट, एंड देन यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन विद द चाइल्ड. लेट्स से कि द चाइल्ड सेज टू हर टीचर कि मैम, ओके, kinesthetic and auditory I do well, बट विजुअली ऑल्सो आई एम गुड एट दिस. तो अगर मैं किसी चीज को ड्रॉ करके बनाता हूँ तो मुझे बेटर याद होता है, या मैं माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करता हूँ और मुझे बेटर याद होता है. सो इट ओपन्स अप द स्पेक्ट्रम कि अच्छा, आपका ये भी स्ट्रेंथ है, तो वी कैन गेट इन टू दिस फील्ड. हमारे केस में जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे थे, तो हम, क्योंकि ठीक है यार, 10th तक की पढ़ाई होती क्या है, तो वो ठीक है. अगर सिंसियर बच्चा होता है तो वो परफॉर्म कर जाता है, इतना कोई लोड होता नहीं है. तो हम उसमें अच्छे थे, तो उन्होंने बस मान लिया कि हाँ, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे हैं, तो पीसीएम दिला दो इनको. बट किसी ने हमसे बैठकर बात नहीं करी कि अच्छा ठीक है, करना क्या चाहते हो, ओके, लाइफ में कौन सी सोसाइटी इतनी देख ली आपने, कौन सी प्रॉब्लम है जो आप केयर करते हो उसके बारे में, और आप फिक्स करना चाहते हो, और उसको फिक्स करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी जरूरत होगी. Nobody talk to us about that. या फिर introducing us to people. This is what I do with my students. तो अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि मुझे नीट की पढ़ाई करनी है, या मुझे सीए बनना है, तो आई आस्क देम टू टॉक टू अ सीए, एंड देन आई आस्क देम टू आस्क देम क्वेश्चंस कि आपकी स्टूडेंट जर्नी कैसी थी, और सीए बनने के बाद कैसा फील कर रहे हो, और आप जो करना चाहते थे उससे आप अलाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे. आर यू हैप्पी व्हेन यू कम बैक एट होम? क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड देन स्टूडेंट को और क्लैरिटी आता है कि अच्छा ठीक है, सीए लुक्स लाइक अ लुक्रेटिव ऑप्शन, पैसा बहुत है, बट ये भैया ज्यादा खुश नहीं दिखते. या इट मेक्स अमेजिंग. मोर सेंस. सो ये सब मतलब अब सोसाइटी को भी सिखाने की जरूरत है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें ये सब प्रॉब्लम्स को. तो दिस इज व्हाट आई इंक्लूड इन माय ट्रेनिंग, इन माय कोर्सेज. Amazing. This is tremendous. Every sentence that you're speaking now, you have no idea how many people are gonna get impacted with this. आई क्योंकि होप सो. इतना common problem है, and you said exactly like एकदम nail on the head कि लोग नहीं realize करें because they are themselves not aware, और इसमें किसी का भी fault नहीं है क्योंकि ये नहीं है. बहुत लंबे टाइम से चलती हुई conditioning है
कि हमें ऐसे ही बताया, हमने ऐसे ही सीखा, हमने देखा भी ऐसे ही है, एंड दे हैव नॉट कनेक्टेड विद पीपल लाइक यू और द कोचेस दैट वी आर सराउंडेड विद, कि उन्हें Yes. पता होगी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है. इफ आई हैड नॉट रिसीव्ड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप जैसे लोगों से मिलूं या बात करूं या इंटरेक्ट कर पाऊं, शायद मैं भी वहीं फंस के रह जाती थी. So I this agree. is a blessing, and thank you Mm. so much for bringing this to light. I'm It was glad. much needed. Mm. Now I want to, you just like mentioned about the Gurukul system, and I feel very strongly about it कि actually ये वही fault है कि जो British ने जो education launch किया वहीं से start हुआ है, क्योंकि उसके पहले हमारा जो Indian education system था वो it's strongest in the world. Like we know about Nalanda University, we know कि हमारे roots बहुत strong है, Mm. but because we got deflected from that, which is why we are facing these problems. तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि हमारे गुरुकुल एजुकेशन से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए हमारे अभी के इनोवेटिव लर्निंग में? So it's a very good question. I think the primary is knowing self. तो हम एज ह्यूमंस अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं. सो इट्स ओके टू बी अ सोशल एनिमल. इट्स ओके टू बी to meet people and to interact with the number of people and know them and read books and listen to podcasts and everything. Yes, it's great. बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि बहुत सारी लर्निंग्स ऐसी होती है जो हम अगर खुद से बात करें तो हमें आंसर्स मिलते हैं. बस प्रॉब्लम ये है ना कि हम खुद से दूर हो गए हैं और हम दूसरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में ज्यादा आंसर्स ढूंढते हैं. अब उन आंसर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो आंसर्स मिल तो जाते हैं, समझ भी आ जाते हैं, पर वो स्टिल थ्योरी होता है. वो प्रैक्टिकल तभी बनता है जब आप खुद या तो ट्राई करो, खुद महसूस करो या खुद के अंदर से आए. राइट? तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज सेल्फ रिफ्लेक्शन. एंड वो सेल्फ रिफ्लेक्शन तभी आएगा जब आप या तो जर्नलिंग करोगे या फिर अपने बारे में चीजें लिखोगे, ग्रैटिट्यूड फील करोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे. अब इन वर्ड्स के अराउंड भी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम बहुत हैवीनेस है. आई एम श्योर यू अग्री Yeah. कि कितना भारी काम बोल दिया कि अच्छा बैठकर मेडिटेशन करो. मतलब अब तो दुनिया की सारी थॉट्स को ब्लॉक करना है, हमको अकेले एक फिक्स पोजीशन में बैठ जाना है और बाबाओं की तरह बैठकर बस ध्यान मुद्रा में बैठना है. सबसे बड़ा फियर कि अरे बाप रे, अपने थॉट्स को फेस करना पड़ेगा. यस, तो बहुत हैवीनेस है इसके अराउंड भी. इट्स नॉट दैट हैवी. मतलब ये कोई बैटल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई गोल नहीं है जो अचीव करना है. इट्स जस्ट अ डेली प्रैक्टिस जो करनी है. किसी दिन अच्छे से होगा, किसी दिन नहीं होगा, किसी दिन बहुत थॉट्स आएंगे, किसी दिन कुछ नहीं आएगा, किसी दिन एंजॉय करोगे, किसी दिन नहीं करोगे. इट्स ओके, बिकॉज इट्स जस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, जस्ट मी, माई सेल्फ एंड आई. तो इन वर्ड्स के अराउंड इतनी हैवीनेस के कारण जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ तो लोग ऑलरेडी भागने लगते हैं कि ये मत बताओ हमको. आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट मिथ. आई वॉन्ट टू रियली बस्ट इट कि इट्स जस्ट यू स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ. तो इसमें भागना क्या है? अगर नहीं मजा आया तो कोई बात नहीं, आज नहीं मजा आया कल कर लेना. इट्स दैट सिंपल. मिलता क्या है ये करने से इज दिस कि जब आप बैठकर ध्यान करते हो या प्राणायाम करते हो या योग करते हो या कुछ और भी ऐसी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हो, आप सेंटर्ड होते हो. सेंटर्ड होते हो मतलब आपका ऑरा क्लेंजिंग होता है, आप खुद के करीब जाते हो. तो आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, या आप स्टक फील कर रहे हो अपने गोल्स में, आपको पता है आपको कुछ करना है पर कर नहीं पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, हार्ट ब्रेक हो गया क्योंकि ब्रेकअप हो गया, तो वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, उसके आंसर्स अंदर से मिलने लगते हैं. क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हम दूसरों को बेटर आंसर्स दे पाते हैं, दूसरों को बेटर काउंसल कर पाते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है खुद के लिए. दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी. हर कोई दूसरों को बेटर काउंसल कर पाता है. ये इसलिए है क्योंकि ज्ञान तो आप में था, इसलिए दूसरे की प्रॉब्लम को आप बेटर हैंडल कर पाए, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है. आज की डेट में ज्ञान की कमी नहीं है, सबके पास है. एंड थैंक्स टू द इंटरनेट ऑफ लाइक इंस्टाग्राम, आई शुड से द इंस्टाग्राम जमाना, we all have like surplus of gyan coming on our way. So that is not the problem. The problem is actually identifying with that gyan and making it your own. और वो अपना तभी बनता है जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो. तो फिर आपको बाहर से आंसर्स नहीं चाहिए होते, आपको खुद ही समझ आता है कि अच्छा ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका ये आंसर है, ये करूंगा या करूंगी तो ही मैं बेटर फील करूंगी, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा. सो दैट इज वाई आई थिंक गुरुकुल विद्या से अगर सबसे पहली चीज जो हम सीख सकते हैं वो है स्पिरिचुअलिटी. एंड ऑल ऑफ दिस दैट आई टॉक्ड अबाउट
is actually spirituality. It's भगवान से रिलेटेड सब चीजें हैं, बट वो सेकंड फेज में बात करेंगे. सबसे पहला इट इज नोइंग योरसेल्फ. यस, So पहले yeah, खुद को जान ले, फिर हम दूसरों के बारे में, या भगवान तो बहुत बड़ी चीज हो गई. yes, Oh my yes, God, yes. the way you speak, I have to say this. I can listen to you all day, literally. I love the way you explain things. It's amazing. Thank you. So now I that personally feel also this, the way that I am communicating and I'm able to, bring my thoughts clearly. I think the strong reason is my journey of meditating and spending time with self-reflecting, understanding things on a deeper level, which is why I think now I have become a stronger medium to energy passing through me. अब ये थोड़ा tricky हो जाएगा समझना, but what I mean is कि जैसे कोई thought bubble है, ठीक है, अब हम ह्यूमंस बात कर रहे हैं, कोई थॉट बबल यहाँ पर है. अब उस थॉट बबल को प्रॉपरली अपने कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करना, दैट्स अ चैनल, राइट. अब वो चैनल मेरा स्ट्रांग इसलिए या बेटर इसलिए है बिकॉज आई हैव स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ, हैड सम क्लेंजिंग, अपने आप को इम्प्रूव किया है. तो वो जो यूनिवर्सल थॉट बबल है वो इजिली ट्रैवल हो पाता है मेरे थ्रू. एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली एम एंड होप दैट एवरीबडी कुड डू, ईच वन ऑफ अस. अमेजिंग, ब्रिलियंट. आपने एक्चुअली बहुत डीप बात बोल दिया, उसे बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया इन जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस. बट प्लीज गो डीपर इनटू दिस कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है कि उन्हें बहुत सा नॉलेज है, इंक्लूडिंग मी मेनी अ टाइम्स, कि आई नो आई हैव सो मच टू एक्सप्रेस, मैं बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई टीच वेरी नाइसली, और ऐसे बहुत से लोग हैं. बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू डूइंग दैट, दे गेट लाइक क्लटर्ड. Scattered, yes. हाँ, सब कुछ एक साथ आ रहा है, ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, ये भी एक्सप्रेस करना है, आई नीड टू ब्रिंग दिस आउट टू पीपल. और ये एक्सप्रेशन हर तरफ में, नॉट जस्ट लैंग्वेज, इन ऑल थिंग्स, वेदर दे वांट टू परस्यू सर्टेन स्किल्स या उन्हें कोई प्रोफेशनली कोई चीज परस्यू करना है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, लाइक कि यहाँ जाओ वहां जाओ, आई एम गुड एट दिस बट आई वांट दिस. तो वो पूरा कंफ्यूजन, वो लाइक रहता है ना, पूरा रिडल हो जाता है और पूरी गुत्थी बन जाती है. So I know this is again the same problem coming from this कि हम अपनी energy से connected नहीं है, which is why we don't flow through it. Yeah. So why does this happen and how can we deal with this? So okay, तो स्पिरिचुअल एंगल पर तो मैंने बात कर ली अभी. अब हम रियल टाइम सॉल्यूशंस पर बात करेंगे कि एक्टिवली कैसे कर सकते हैं. ओके, पहले समझते हैं कि व्हाई डज इट हैपन. इट हैपेंस बिकॉज फर्स्ट बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी है हमारे ऊपर. तो हम जितनी चीजें देखते हैं हमें उतनी चीजें करने का मन करता है, बिकॉज व्हाई नॉट, है ना. स्किल बिल्डअप कर सकते हैं, एस्पिरेशंस है, क्यूरियोसिटी है, सो व्हाई नॉट, वी कांट हेल्प दैट, ठीक है, कोई बात नहीं. सेकेंड, इट हैपेंस इतना केओस इसलिए है क्योंकि हमने हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को कभी प्रोसेस नहीं किया, कभी उनको टाइमलाइन नहीं किया, कभी खुद को बताया नहीं कि हाँ ठीक है ये करना है, बट अभी नहीं, 2 साल बाद करना है, ये अभी की प्रायोरिटी नहीं है. तो हमने ये सब चीजें नहीं करी है. आता है इंटेंट और हम आने देते हैं और फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे कर. इट हैपेंस विथ मी टू, डे इन एंड डे आउट. एंड what I do to process it, that I can help you. ठीक है. So one thing that I do is I use the 5 W's वाला framework, which is why, what, when, where and how. चैलेंज क्या है जो आप फेस कर रहे हो, या अगर मैं खुद की बात करूँ तो ओके, मेरा चैलेंज क्या है जो मैं फेस कर रही हूँ. ठीक है, कैसे पता चला मुझे कि ये चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ. तो मेरी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा फोकस वीक है, ठीक है, तो मैं अगर कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं लंबे टाइम फोकस नहीं कर पा रही हूँ एंड मैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. ठीक है, अभी मैंने चैलेंज आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे लाइफ का ये चैलेंज है कि मैं 10 मिनट से ज्यादा फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ. फिर अब मैं सोचूंगी कि कैसे मुझे पता चला कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ. तो फिर मैं याद करूंगी कि अच्छा फोन बजता है, मैं फोन देखने लगती हूँ, काम करते करते कुछ और थॉट आता है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, दूसरा टैब खोल लेती हूँ और वो उस पर फोकस करने लगती हूँ. ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे प्रॉब्लम्स है. तो अब जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करा तो वो ट्रिगर्स को ब्रिंग डाउन करेंगे कि ठीक है, अगर मैं फोन देखने लगती हूँ, सो द टेक्निक दैट आई पर्सनली यूज इज आई डू पोमोडोरो, आई प्रैक्टिस पोमोडोरो टेक्निक, सो विच इज 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्किंग और डीप स्टडिंग. तो 25 मिनट आई वुड जस्ट कीप माई फोन असाइड कि ये जब अलार्म बजेगा इसमें तभी आई एम गोइंग टू टच इट, एंड 25 मिनट्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. अगर कोई थॉट आ रहा है दिमाग में तो आई वुड पार्क इट. सो दिस इज व्हाट आई कॉल पार्किंग मेथड. कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आया या कोई थॉट आया और लगा कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिंग इशू है, इसको अभी एड्रेस करना होगा, माइंड हमें से बेवकूफ बना रहा है,
इतना प्रेसिंग इशू है नहीं, वो 25 मिनट बाद भी किया जा सकता है। लेकिन तब लगता है ना कि अरे अभी नहीं किया तो भूल जाएंगे, तो बस आई कीप अ डायरी विथ मी वेयर आई राइट इट डाउन कि ठीक है, आफ्टर 25 मिनट्स दिस इज व्हाट आई हैव टू एड्रेस। जैसे हम अपनी कार को पार्क करते हैं, अगर शॉपिंग करने गए हैं, कार को पार्क करा है, तो सोचते थोड़ी रहते हैं अरे कार है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं। पता है कि शॉपिंग करी चाहे 4 घंटे बाद आएंगे, कार मिलेगी, उसको अंदर घुस के चले जाएंगे। तो सिमिलरली पार्क योर थॉट समवेयर, दिस इज व्हाट आई डू वेरी एक्टिवली। ओके, एंड योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि लाइफ में इतना कुछ करना है लेकिन ओवरवेलम होता है कि ये भी करना है वो भी करना है। सो दिस हैपेंस विथ मी आल्सो एंड आई प्रैक्टिस दिस अ लॉट, व्हिच इज लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज। तो मुझे हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, मुझे ड्रम्स बजाना भी सीखना है, मुझे संस्कृत भी सीखना है। ठीक है, तो ये हॉबीज हॉबीज लर्निंग वाला हो गया। फिर बहुत सारी बुक्स है जो मुझे पढ़नी है, तो वो मेरे लिस्ट में है कि ये पॉडकास्ट पढ़ना है, ये बुक्स सुनना है, ये बुक्स पढ़नी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर there is a lot that I want to do in my work. So I want to also teach students, I want to also teach parents, help in the society, work with the government. There's so much that I want to do. अब आज तो सब कुछ नहीं कर सकती, it's just what I want to do, it's just the vision that I have for myself. लेकिन थोड़ा जीवन है, अभी जीना है, प्रेजेंट में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। So what I do is मैंने एक नोटबुक में इन सब चीजों को कलेक्टिवली लिख लिया, और जो नया थॉट आता है, जो नया आइडिया आता है कि ओ माय गॉड दिस इज माइंड ब्लोइंग, आई हैव टू डू दिस, सेगमेंट बना लिए हैं अलग अलग, हॉबीज के अलग, वर्क रिलेटेड अलग, पर्सनल डेवलपमेंट फिटनेस अलग अलग। यस, एंड This is आई a जस्ट ball पार्क one. देम देयर। या आई जस्ट पार्क देम देयर, एंड देन वंस आई डिसाइड कि ओके, फिर मैं टाइमलाइन सेट कर लेती हूँ कि ठीक है अक्टूबर नवंबर में, लेट्स से 2023 में, अभी 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, इनमें मेरे को बस इन 3 चीजों पे 4 चीजों पे फोकस करना है, फिजिकल एस्पिरेशनल मोटिवेशनल लेवल पर। बाकी सब चीजों को पार्क करो, या 24 में करेंगे या 25 में करेंगे। एंड दैट इज हाउ आई सेग्रीगेट थिंग्स, कि करेंगे लेकिन कुछ टाइम बात करेंगे, अभी ये करना है। तो दैट वे थोड़ा दिल ना शांत रहता है कि हाँ सब हो जाएगा, पर अभी ये करते हैं। सो आई आपने थिंक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे दिया है। थैंक यू सो मच। फॉर मी पर्सनली मुझे भी इसकी जरूरत थी। अब इसके बाद मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्राइक्स माय माइंड इज कि ठीक है, हमने चूज कर ली कि अभी ये चीज है, अब इनको प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे कि व्हाट फर्स्ट। हाँ, सो प्रायोरिटाइज करते हैं नीड ऑफ द आवर पे। ओके, हु इज योर वन पर्सन दैट यू रियली वांट टू इंटरैक्ट विद एंड यू वांट टू कोलैबोरेट विद, लाइक whom do you look up to? लाइक द हाईएस्ट वन, Yes, the highest one. प्रियंका चोपड़ा। Sorry, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका लाइक चोपड़ा, ब्यूटिफुल। सो अगर प्रियंका चोपड़ा को टारगेट करना है, तो किन किन को पहले टारगेट करना होगा, सो दैट द लिंकिंग इज सेट दैट वे दैट यू रीच प्रियंका चोपड़ा, because she is also a human. She would care about you when she sees that, oh, you are connected to this person and she cares about that person. That is how she will think. So you have to create a network, like a timeline. It doesn't have to be very fixed, but it has to be like a road map कि ठीक है इनसे बात करते हैं, इनसे ये टॉपिक पे टच करेंगे, फिर दिस पर्सन दैट पर्सन। यू ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि आप पर्सन को आइडेंटिफाई करो, आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस लीग के लोगों को टारगेट करना है, and then you can scale up your journey. So I think stairs बनाना, वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो स्टेयर्स बनाना इज अ गुड आइडिया। तो इस तरह से प्रायोरिटी समझ आती है। So yeah. अमेजिंग। वाओ, आई एम लाइक सो फिल्ड अप राइट नाउ। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट योर प्रेजेंस एंड द वे यू आर स्पीकिंग एंड द थिंग्स यू आर ब्रिंगिंग आउट। थोड़ा मैं ओवर कॉम्प्लीमेंट कर रही बट इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, सो जस्ट टेक इट। Thank you so Okay. much. All with Up, my open arms, I'm taking it. Good. Okay. now let's come specifically to the people who are facing immense problems the most, which is the students, जिन पे दुनिया भर का प्रेशर जो नहीं होना चाहिए बिना वजह डाल दिया जा रहा है, और कुछ वो खुद से ले रहा है, which is specifically the people who are preparing for, like you said, the competitive exams, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फील्ड में कंपटीशन तो हमें फेस करना ही है। पर ये जो Yep. फिक्स फॉर्मेट है कंपटीशन का, एक तो पॉपुलेशन है, ऊपर से पीपल आर वेरी स्मार्ट, मतलब दे आर गिविंग इन देयर टाइम एनर्जी एंड पीपल आर वेरी वर्दी, पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बहुत मुश्किल हो गया कि वो एक प्लेस के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं। सो कैसे किसी को मिल जाएगी? सो Yeah. हाउ डू दे डील विद दिस प्रेशर एंड जस्ट, yeah, that is the question. So actually, this was my real pain, like something which really pains me. This whole problem that you just narrated is why I'm doing what I'm doing, because I have gone through that pain myself, and now when I see young kids going through the same journey, uh,
बस दर्द होता है। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया, आई थॉट अ लॉट अबाउट दिस, लाइक आई वेंट वेरी डीप इनटू दिस होल प्रॉब्लम कि कर क्या सकते हैं। अभी एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वो एक यूनिवर्सल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम। अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए आई केम अप विद दिस फ्रेमवर्क और द रोड मैप दैट आई कॉल सीयर्स। बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये सीयर्स निकल कर आया है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। सो सीयर किसको बोलते हैं? जो हमारे साधु महात्मा ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको सीयर बोला जाता था, मतलब जो दूर का देख पाए, राइट? तो सीयर बोला जाता था। नाउ आई हैव कम अप विद दिस सीयर्स फ्रेमवर्क, जिसमें द फर्स्ट इज एस। एस इज ऑल अबाउट सेल्फ। तो व्हाट आई टेल या व्हाट आई हेल्प स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ, कि अच्छा पहले देखते हैं कि आप कौन हो। तो फिजिकल लेवल पर आप कौन हो, मेंटल लेवल पर आपका क्या मेंटल कैपेसिटी है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इमोशनल लेवल पर हाउ मच कैन यू टेक प्रेशर, हाउ मच कैन यू टेक फेलियर और गिल्ट। एस्पिरेशनल लेवल पर कि आप जो गोल के लिए एस्पायर कर रहे हो सच में वो गोल चाहिए क्या। एंड स्पिरिचुअल लेवल पर कि what is the big thing that you will impact via choosing this particular exam। कुछ बड़ा करोगे, कुछ करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो क्या इससे बड़ा कर पाओगे। तो पहले खुद को जानो, सेल्फ, एस। सेकेंड स्टेप इज ई, एक्सप्लोर। सो एक्सप्लोर मतलब अब जो आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं अब उसको एक्सप्लोर करो पहले, कि वो एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से कितने बच्चे निकले, फिर वो एग्जाम का करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। उसके बाद आगे चलो एग्जाम क्लियर कर लिया, करियर में घुस गए, क्या सैलरी मिलेगा, इज डज दैट फिट योर फ्रेमवर्क। सो ऑल दैट जो एस्पिरेशनल, मतलब हम बस दूर से देख लेते हैं बच्चे की, ओह इट्स अ वेरी गुड फील्ड, इसमें जाना चाहिए, सक्सेस है। बट नो, स्पीक टू पीपल हु हैव गॉट दैट सक्सेस। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं that a lot of IITians eventually choose MBA or eventually become an entrepreneur or eventually do something else altogether. There are a lot of dropouts also. Why did they drop out? क्या था जो तुमको नहीं पसंद आया, ये आइडेंटिफाई करो। हम अच्छा अच्छा देखकर भाग तो जाते हैं, बुरा नहीं देखते हैं, राइट? तो ये आइडेंटिफाई करो। फिर ये जो बात आपने बोली कि कन्वर्जन सिर्फ 1% या और लेस देन 1% बच्चों का होता है, तो खुद से पूछना कि यार डू आई हैव दैट, यस आई एम इंटेलिजेंट, ओके, बट डू आई हैव दैट ग्रिट, दैट हार्डवर्क पर्सन इन मी, कि मैं इतना पढ़ लूं कि वो 1% को क्रॉस कर जाऊं। और अगर नहीं तो चूज समथिंग एल्स यार, लाइफ इज बिग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो सेकंड इज एक्सप्लोर, ओके। देन थर्ड फॉर सीयर्स इज अगेन ई, विच इज एक्सपेरिमेंट। जब ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, ओके, अच्छा लग रहा है ये आइडिया, आई कैन ट्राई इट, तो अब फिक्स लाइक अ 21 days और 50 days और 60 days टाइमलाइन, जिसको जो सूट करता है, कि अब ये 60 days सब कुछ भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये एग्जाम के लिए मैं सच में बना या बनी हूं या नहीं। तो कोर्स डिसाइड कर लो, टाइम टेबल डिसाइड कर लो, कि कोर्स मतलब इतना पार्ट डिसाइड कर लो कि मैं इतना पढ़ूंगा, टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि इतना ऐसे ऐसे पढ़ूंगी, एंड 60 days बस एक्सपेरिमेंट करो खुद के साथ, कि ट्राई करते हैं मैं कितना फेल होता हूँ, कितना पास होता हूँ। ओके, यू गेट थ्रू द रियल टाइम वर्क। मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले आपने टेस्ट कर लिया खुद को। तो जो डर होता है ना पेरेंट्स का या बच्चों का कि यार मम्मा पापा के इतने पैसे लग गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। मेरा भी यही डर था, मैं कोटा पहुंच गई थी, सो नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। बट देयर इज अ टर्निंग बैक इफ यू एक्सपेरिमेंट ऑन इट बिफोर हैंड, कि ओके ट्राई करते हैं। अगर टर्न ये पता चला कि ठीक है सब कुछ ठीक है बट मैं फिजिकली इतनी देर नहीं बैठ के पढ़ाई कर सकती, तो बात ही खत्म हो गई ना, बिकॉज जिस एग्जाम के लिए आप एस्पायर कर रहे हो इट डिमांड्स अ 12 आवर 14 आवर रिगरस स्टडी। मतलब आप हार्ड वर्क में नहीं, आप स्मार्ट वर्क में बेटर हो, तो चलो कुछ स्मार्ट वर्क वाला ढूंढेंगे। ओके, सो थर्ड इज एक्सपेरिमेंट करो। देन द फोर्थ इज रिफ्लेक्ट, RSEER, रिफ्लेक्ट, कि जो एक्सपेरिमेंट करा उसके रिजल्ट्स चेक करो, कहाँ अच्छे थे, कहाँ बुरे थे, क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या इंप्रूव करना चाहते हो, क्या इंप्रूव नहीं करना चाहते हो। सो वो रिफ्लेक्ट वाला जोन। एंड देन लास्ट इज शेयर। अब जो चीजें सीखी उसको क्या तो किसी को पढ़ाओ या फिर एग्जाम दो, क्योंकि एंड में तो एग्जाम में देना है ना। यूजुअली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन उनकी एग्जाम राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या उनको जैसा आपका पहला क्वेश्चन था कि इतनी सारी बातें हैं पता नहीं है लिखना कैसे है या बोलना कैसे है, तो डिलीवरी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, डिलीवरी स्ट्रांग नहीं है। तो वो शेयर वाला सेगमेंट है फिफ्थ, कि अब ठीक है जो करा अब उसको शेयर करके देखो कि क्या आर यू एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन राइटली एंड एबल टू डिलीवर इट वेल। सो दैट इज द कंप्लीट लूप।
इफ SEERS में सक्सेसफुली आप क्रॉस हो गए तो आपको क्लैरिटी आएगा कि ओके दिस इज द थिंग दैट आई शुड बी डूइंग, लेट्स गो. एंड देन आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट, बी इट 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, जब भी वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, they should go through this. And in fact, even in their journey of being in 11th or 12th or maybe a dropout student, PSC के बहुत सारे, UPSC के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार ड्रॉप ले रहे हैं. For all of them, I would suggest that they follow this year's roadmap, experiment with themselves, and then फिर जो रिजल्ट आता है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि ओके ये मेरा रिजल्ट है. क्योंकि इस प्रोसेस में ना उनको अपने बारे में बहुत चीजें पता चलेगी कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में बुरा हूँ. तो और भी आइडियाज और ऑप्शंस खुलेंगे कि अच्छा ये भी तो XYZ ऑप्शन भी तो पिक किया जा सकता था, मेरा भी विजन बहुत स्ट्रीमलाइंड था. So this is what I suggest my students, and I think this is what I would tell you, that Sears roadmap is something that students at this time could try out and then find out what or where they belong. Imperative. It's imperative to get that clarity. Yes. Amazing. Love it. Yeah. So through this process itself, I realized कि बहुत बड़ा spectrum है of jobs, professions और even hobbies. लेकिन सब में एक चीज common है, that is communication skills. ये आपको हर जगह लगेगी, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या टीचर हो या वट एवर यू आर डूइंग, इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो लैडर ही चाहता है कम्युनिकेशन स्किल्स से होके. बट देयर आर मेनी पीपल, क्योंकि अगेन वो रट्टाफिकेशन में और कॉन्सेप्ट्स में, लॉजिक में फंसने की वजह से हम की स्किल को, सॉफ्ट स्किल को ही भूल जाते हैं. एंड जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस पे पहुंचते हैं कि या नाउ वी हैव टू डिलीवर, वी नीड टू डू द थिंग्स दैट वी हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल ब्रिंग टू द टेबल, बट अब हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा है. अगर हम हायर स्पेस पे हैं तो हम अपने जूनियर्स को नहीं बता पा रहे, अगर जूनियर पे है तो हम कैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी इशू है और कम्युनिकेशन भी इशू है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? I think you are really right about this. The whole idea of communication is the core of being a human, because we are expressive beings, we are social beings. Until and unless we are not interacting or expressing or socializing, I am in my world and you are in your world, then how will we create something without interacting, right? So evolution ही नहीं होगा. So I think communication is the core of who we are. And I think major problem why we lack here is again because we don't have clarity of self. हमें जो बोलना है अगर हमें ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे बेटर बोल पाएंगे? सिंपल सी बात है ना. या फिर अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं और जब हम सुन रहे हैं तब हम उस जगह पर प्रेजेंट ही नहीं है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो हम रिसीव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और रिसीव नहीं करेंगे तो उसको रिजल्टेंट उसका अच्छे से नहीं होगा. सो एज सिंपल एज दैट. तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन के साथ साथ वी नीड टू गो डीपर. जैसे कम्युनिकेशन तो फिर भी एक रिजल्ट हो गया, विद दैट यू नीड टू गो डीपर, wherein you help people identify कि okay, before delivering what you're supposed to deliver, first step is to know what you're supposed to deliver. So पहले ये internal clarity हो. Let's, for example, like you're a proficient language teacher, right? And you teach English to students and people. Now a lot of people who have linguistic barrier, and especially with English language, is maybe because they have fear of speaking. It's not that their grammar is not good or their sentence making is not good. It's just that they fear, because bachpan mein maybe somebody bullied them on their language, and now they have that guilt, they have that fear. So breaking that, अगर वो barrier तोड़ दिया तो फिर तो knowledge तो पहले से ही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डरे हुए थे कि मैं बोलूंगा तो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, या एक्सेंट उनका इनहिबिशन था कि मुझे सही से बोलना नहीं आता है एंड पीपल विल मेक फन ऑफ मी. ऐसे किसी और का बैरियर हो सकता है कि उनको सेंटेंस मेकिंग आती है बट उनको वर्ड्स नहीं पता इंग्लिश लैंग्वेज के. ठीक है, तो दे आर लाइक कि अब मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं सेंटेंस तो बना लेता हूँ पर अच्छे वर्ड्स नहीं यूज करता हूँ. दीज आर माई होलिस्टिक अप्रोचेस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू. सो लेट्स से इफ समबडी इज रीडिंग अ न्यू वर्ड, सो हमें जिनको इंग्लिश आती है, जब हम बोलते हैं फिल्दी, तो जब हम फिल्दी बोलते हैं तो हम फिल्दी फील करते हैं ना कि ओ दैट्स डर्टी, राइट? अंदर से एक फीलिंग आती है. अब जिसको विजुअलाइज करते हैं, एग्जैक्टली, या तो फील करते हैं और विजुअलाइज करते हुए भी फील करते हैं. फील तो करते ही करते हैं बट विजुअलाइज करते हैं, राइट? अब जो स्टूडेंट पहली बार फिल्दी सुन रहा है उसको क्या पता, तो उसको जब ये समझ आएगा कि फिल्दी मीन्स डर्टी, और उसके साथ जब वो फील करेगा उस वर्ड को, दैट इज व्हेन इट्स गोइंग टू स्टे विद इन देम.
एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय होलिस्टिक अप्रोच, कि इमोशनल एंगल ऐड कर लिया पढ़ाई करते करते, तो अब आप बस रेक्टाफिकेशन नहीं कर रहे हो या बस सिंपली एक वर्ड का मीनिंग नहीं देख रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो खुद के साथ, उसको फील कर रहे हो. तो दैट इज हाउ यू अप्रोच इट, कि यूज डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग. मेंटली भी स्ट्रांग करो, इमोशनली भी स्ट्रांग करो, spiritually be strong karo, and then learning becomes easier. So that was actually brilliant, and you are perfectly right about the mental barriers, because in my community I do exactly the same. Before we begin with any techniques or any like conceptual things, first I tell my students to do this exactly, कि पहले notice करो कि आपके mental barriers क्या है, blockages क्या है, and go to that place. And also I have started doing the open thing in my community now, कि Great. उनको easy हो जाए recognize करना कि यही होता है, कि किसी ने आपको बचपन में बहुत पहले, आपको कॉन्शियसली याद नहीं होगा, पर वो कहीं अटक जाता है दिमाग में जाके, कि आपको किसी ने ऐसा कह दिया या किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, तो आपको लग रहा है कि आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, यू कैन नॉट कन्वे वर्ड्स, या आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, या आपको बोलने में ही डर लगता है, स्टेज फियर है. ये सब एक्चुअली वो नाम लेबल जो हम कर देते हैं चीजों को, वो होता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही होती है. सो फर्स्ट टाइम मेक देम रिकॉग्नाइज दिस, कि जब आपको पता होगा कि यहाँ से ये आ रहा है, बाकी टेक्निकल चीजें करना इज इजियर, कि आपको हैबिट ट्रैकर है, दिस इज योर टेक्निक, दिस इज हाउ यू डू इट. पर उसके पहले जब तक आपकी सबकॉन्शियस जो अटका हुआ है उसको नहीं निकालोगे, तो आपको सारी टेक्निक सीखने के बाद भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे प्रॉपरली, और इम्प्लीमेंट कर भी लिया तो आप उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करोगे. यू विल नॉट सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए आप आए हो यहाँ पे. सो दिस इज द वे आई गो विद इन माई कम्युनिटी. एंड या जो एक्चुअली इसे फॉलो कर रहे हैं, दे सी, उनको फिर फील होता है कि अरे हाँ, ये तो अंदर से कुछ चेंज हो गया, कि बाहर बाहर से हम कुछ सीख ले, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है. ऐसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज के बारे में या एआई के बारे में या मार्केटिंग डिजिटल ये वो सब कुछ हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, पर प्रॉब्लम हमारे इनिबिशंस होते हैं. जब तक उसको क्रॉस नहीं किया, तो आपको कितना भी नॉलेज दे दिया जाए, कितना भी गाइडेंस दे दिया जाए, वो कम ही पड़ जाता है. दिस इज माई की फैक्टर, कि इस पे पहले फोकस करेंगे, बाकी चीजें अपने आप से हो जाती है. So yeah, I 100% resonate with that. And I think that is the importance of having a coach or a mentor in your life, because वो mentor आपको actually mirror दिखाता है. हैंड होल्डिंग नहीं करते हैं, वो मिरर दिखाते हैं कि ये आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ज्ञान तो मिल ही जाता है, पर उस ज्ञान से खुद को नहीं जान पाता कोई भी इंसान. वो काम मेंटोर या कोच करता है. सो आई थिंक you're actually doing a great job. Yeah, likewise. High five. I call this Wi-Fi high five. High five. Yeah. Amazing. So I'm glad that we found this space where we can actually express to people who need to hear this. Had fun listening to this conversation? Congratulations, because there's a part 2. I'm going to upload one episode of this podcast every Saturday. So subscribe to the channel and get the notifications on, ताकि जब भी नया एपिसोड अपलोड हो या और कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. I also want to thank you for your attention and focus for listening to the podcast till the end. If you're intrigued by this conversation and want to know us more, go to the description and check out our profiles on all social media platforms and follow us. Also, don't forget to comment below this video कि कौन से टॉपिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे या और कौन से टॉपिक्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं, एंड योर की लर्निंग्स, क्या सीखा आपने इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद. This will motivate me to bring you even more valuable content on a regular basis. Thank you so much for tuning in to Ambivert Aish. Until next time, love, adios.